محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. تو 3 دن سے نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت پر بات چل رہی ہے. بہت بڑا ایک عمل اللہ نے اپنے بندے کو نماز کی شکل اور نماز کی صورت میں عطا فرمایا. آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں تمام کے تمام فرشتے عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں. ان کی ڈیوٹی ہی عبادت کرنا ہے. وہ اس سے 1 منٹ کے لیے نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کام لگ سکتے ہیں اور نہ کسی اور کام کو کر سکتے ہیں. کوئی فرشتہ وہ قیام کی حالت میں کھڑا ہے تو کھڑا ہے، اللہ کی تسبیح حمد و ثنا کر رہا ہے، اور قیامت کے دن تک وہ فرشتہ کھڑا ہی رہے گا. کچھ فرشتے وہ ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کر رہے ہیں، لیکن ساری زندگی ان کی عبادت وہ رکوع ہے اور ساری زندگی ان کی زبان پر تسبیح سبحان ربی العظیم. کچھ فرشتے وہ ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ساری زندگی کا ان کا عمل وہ سجدہ ہے اور سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. رب تعالی نے اپنے بندے کو نماز کی شکل جو عبادت عطا فرمائی، یہ تمام کے تمام فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ ہے. اس میں انسان کھڑا بھی ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، التحیات بھی بیٹھتا ہے اور نماز کی ابتدا کرتا ہے اللہ اکبر سے، سبحانک اللہم سے، پھر الحمد شریف پڑھتا ہے، پھر کوئی سورت ساتھ ملاتا ہے. اور اتنی پیاری اللہ نے اس کو یہ عبادت عطا فرمائی کہ جب تک یہ انسان نماز میں ہے اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی طرف نظر رحمت کیے بیٹھا. کبھی نماز میں سوچ کے اعتبار سے ادھر ادھر دیکھنے کے اعتبار سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس سے اپنی نظر ہٹا لیتا ہوں. نماز وہ عبادت ہے جس عبادت سے مسلمان اور کافر کی پہچان ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین المرء و بین الکفر الصلاۃ. کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھی ہے؟ نماز. اب ہم میں سے ہر ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں اس کی میں کتنی پابندی کرتا ہوں، اس کا میں کتنا اہتمام کرتا ہوں، وہ میری زندگی میں کس حد تک پابندی ہے نماز کی، یہ ہم میں سے ہر ایک کو خود سوچنا چاہیے. یہی وہ نماز ہے اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے بلال اٹھ اذان دے اور ہمیں راحت پہنچا.
यानी अजान देगा तो हम नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ने से जिंदगी में राहतें और सुकून और बरकतें आएंगी। यही वो नमाज है जो एक मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करती है, और यही नमाज है जो इंसान को जहन्नम से बचाती है और जन्नत ले जाती है। कुरान करीम ने एक बड़ा मंजर बयान किया, वो ये कि जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम चले जाएंगे। आम मुसलमान का नजरिया यही कि अल्लाह ने मुसलमान वास्ते जन्नत बनाई और जहन्नम अल्लाह बनाई है काफिरा वास्ते। अब जन्नत में जब जन्नती पहुंच जाएंगे तो फिर किसी टाइम किसी ने दिल करेगा यार मैं अपने फलाने संगी नु मिल लवा, को फलाना दोस्त है मेरा, उदे नाल चलो मुलाकात कर लो। जन्नत इस तलाश करेगा तो वो संगी, वो बेली, वो दोस्त जन्नत नजर नहीं आए। फिर वो देखेगा कि वही मुसलमान दोस्त उसका जहन्नम में है। अब ये परेशान होगा कि मुसलमान का जहन्नम में क्या काम। मुसलमान के लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाई। अब आप कोई फैसला करने से पहले उसी जहन्नम में मौजूद बंदे से पूछेगा मा सलककुम फी सकर। भाई तू तो चंगा भला बंदा सी, तू तो मुसलमान था, कलमा गो था, अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत का दावेदार था, अल्लाह और उसके रसूल पर मर मिटने का तेरा नारा था, और आज तुझे मैं देख रहा हूं कि तू कहां जल रहा है, जहन्नम में। मा सलककुम फी सकर, क्यों, क्या वजह है, क्या मसला है। तो उस बंदे का जो जवाब है वो जवाब सुनने वाला कुरान उसको नकल करता है। वो क्या कहेगा, वो जहन्नमी जो मुसलमान होने के बावजूद जहन्नम की आग में जल रहा है, वो कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, मेरी जिंदगी में बाकी सब कुछ था, सोना उठना बैठना गमी खुशी आना जाना सब था, लेकिन मेरी जिंदगी में नमाज नहीं थी। लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज की पाबंदी नहीं थी, नमाज की फिक्र नहीं थी, नमाज पढ़ता नहीं था। हदीस में आता है अब सल्लल्लाहु, अब देखना खुद वो जहन्नमी जहन्नम से खुद अपने इस गलती के इकरार करके क्या कहेगा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। मैं कई दिनों से यही रो रहा हूं कि भाई नमाज सिर्फ रोजे में फर्ज, रमजान के महीने में सिर्फ नमाज फर्ज नहीं है, नमाज सारी जिंदगी का फरीजा है। और कितनी खुशबख्ती है उस मुसलमान की जिसको रब्बुल आलमीन 5 मरतबा अपने घर हाजिरी की तौफीक देवे। अक्सर सोशल मीडिया पे देखते होने ना, कोई मोहसिन शाह नवाज दे रहे थे चला जावे, फिर तस्वीर भी भेजेगा, वीडियो भी भेजेगा कि मैं आज कितने गया सी, फलाने दे रहे थे। किसी और दफ्तर जाएगा, किसी और जगह जाएगा तो वहां से नहीं अपना बड़ापन जाहिर करेगा कि मेरा फलाने बंदे नाल ताल्लुक, मेरा फलाने एमपीए मेने नाल ताल्लुक, मैं मिलन गया तो वो उठ के मेरा मिले या उस मेरे नाल सलाम लिया या उस मेरी गल सुन ली। ये कभी सोचा हमने कि जिस घर हम हाजिरी देने आते हैं मस्जिद, वो किसका घर है? अल्लाह का। किसके दर पर मैं हाजिरी देता हूं? ये तो इंसान की खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि वो अल्लाह जो मालिक अर्ज़ो समा है, जो खालिक कायनात है, जो कुन फयकून के मालिक अल्लाह है, जो तमाम के तमाम इंसानियत को, तमाम के तमाम जानदारों को रिज़्क़ देने वाले अल्लाह है, जो हर एक के मुरब्बी अल्लाह है। उसके दर पर मैं आता हूं
वो मुझे रोकता नहीं है, वो मुझे टोकता नहीं है, वो मुझे आने से मना नहीं करता, और जब भी मैं उसके दर पे आता हूं वो मुझे सजदे की तौफीक दे देता है। इस तो बड़ी खुशबख्ती और की हो सकती है। मैं कहां, मेरी क्या जिंदगी, मेरी क्या औकात। तो जैसे कि लिखा होता है ना, ये सब तेरा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई। अल्लाह से कह रहा है बंदा कि अल्लाह मैं कहां, मैं किस काबिल, मेरी क्या हैसियत, और वो अल्लाह मुझे अपने दर पे बुलाए, वो मुझे अपने घर में आने की तौफीक दे, वो मुझे अपने सामने सजदा करने की तौफीक दे। उलमा ने लिखा है कि जिससे अल्लाह नाराज होता है ना, उसका रिज़्क नहीं बंद करता, उसकी दुकानदारी नहीं बंद करता, उसका कारोबार नहीं बंद करता। जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, सबसे पहला काम अल्लाह उससे सजदे की तौफीक ले ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं मस्जिद नहीं आ रहा, दिन दिन पूरा गुजर जाता है, हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है, मैं मस्जिद, मैं सजदा, मैं रुकू, मैं नमाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और मैं बड़ा खुश हूं कि मैंने कपड़े अच्छे पहने हैं, मैं बड़ा खुश हूं कि मेरा कारोबार बड़ा चल रहा है, मैं बड़ा खुश हूं कि मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा रब मुझसे नाराज है। और रब राजी कैसे होता है? एक सजदा उसके सामने किया, राजी है वो। एक बार पुकार लिया उसको, राजी है वो। एक बार उसकी तारीफ कर ली, राजी है वो। एक बार उसकी बड़ाई बयान कर दी, राजी है वो। तो नमाज जो आज हमारे मुआशरे से तकरीबन निकल चुकी है, हमारी जिंदगी से, हमारी औलाद की जिंदगी से, हमारे घरों से, और कोई जनाजे उठे नहीं उठे, नमाजों का जनाजा हमारे घरों से उठ चुका है। भाई भाई को नमाज के लिए कहने के लिए तैयार नहीं है, बहन बहन को नमाज का कहने के लिए तैयार नहीं है, बाप अपनी औलाद को नमाज का कहने के लिए तैयार नहीं है। ये लगता है जिमें आम जो कम है, जो हो गया तो हो गया, जो ना होया तो ना होया। जबकि नमाज जिंदगी में ना हो तो जिंदगी फजूल है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ने जिंदगी दी है अपने बंदगी के लिए, इबादत के लिए। अगर इसमें इबादत नहीं है, इसमें नमाज नहीं है, इसमें अल्लाह की याद नहीं है, तो ये जिंदगी नहीं है। कल क़यामत वाले दिन यही जिंदगी इंसान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। पिछले दिनों मैंने सुबह के दर्स में बात की थी, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं। हालांकि नबी, मैंने कल परसों भी कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी एक भी नमाज नहीं छोड़ी। एक दो नमाजें कज़ा हुई आपकी, ग़ज़वा खंदक के मौके पर 2-3 नमाजें कज़ा हुई, और एक दफा रास्ते में हुजूर की नमाज कज़ा हुई, लेकिन वो उम्मत को कज़ा का तरीका बतलाने के लिए, ताकि अगर किसी की नमाज किसी मजबूरी की वजह से कज़ा हो जाए तो अपनी नमाज कैसे पढ़े। इसके अलावा हुजूर की जिंदगी से एक भी नमाज कज़ा, या वो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल वफात में है, मस्जिद तशरीफ नहीं ला सके थे। उठते पूछते, ये नमाज साहबा इंतजार कर रहे, हुजूर वुजू करते, लेकिन जब वुजू करते तो गशी तारी हो जाते और गिर जाते। उस नबी को अल्लाह खिताब कर रहे हैं, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि आप भी नमाज की पाबंदी करनी है और अपने घर वालों को भी नमाज का कहना है, हुक्म करना। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जहन्नम से बचो, अपने आप को भी बचाओ और अपने अहल को भी बचाओ। तो एक बुजुर्ग थे, ओ भाई
थोड़ा जा मट्टा। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक बीबी आ गई, कहने लगे जी मेरा बच्चा सुबह नमाज के लिए नहीं उठता। बुजुर्ग कहने लगे बीबी उठा लिया करो उसको, जवान लड़का क्या भाई जी नहीं उठता, बड़ी उठाती हो नहीं उठता। बुजुर्ग फिर फरमाने लगे भाई उठा लिया करो। तीसरी बार जब कह रहे मैंने हर तरीका आजमाया नहीं उठता, बुजुर्ग फरमाने लगे अगर तू उस वक्त ये देखे कि तेरे बच्चे के बिस्तर में आग लग चुकी है फिर किਵੇਂ उठाएगी। मां तो एक बार हिल गई, कहने लगे मैं बिस्तर भी फरा फेंक दूंगी, बच्चे को बाजू से पकड़कर उस चारपाई से नीचे गिरा दूंगी और जल्दी से उसको कमरे से बाहर कर दूंगी। कहता मां यही तरीका बच्चे को नमाज के लिए उठाने का है, क्योंकि दुनिया की आग इतना नुकसान नहीं करती जितनी आखिरत की आग नुकसान करती है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अजान हो जाए तो एक फरिश्ता ऐलान करता है ए इब्ने आदम उठ और अपने से वो आग बुझा जो आग अपने गुनाहों की वजह से तो अपने ऊपर जला चुकी। हदीस में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब इंसान उठता है नमाज के लिए आता है तो उसके वुजू करने बैठता है तो वो गुनाह जो हाथों से किए हो, वो गुनाह जो मुंह से हुए हो, वो गुनाह जो पांव से हुए हो, इस तरह करते करते वुजू किए जा रहा है और साथ साथ उसके गुनाह धुल रहे हैं। फिर जो रह गए नमाज की हालत, नमाज पढ़ता है, सजदा करता है, रुकू करता है, नमाज में बाद में दुआ मांगता है, तो इस तरह ये बंदा मस्जिद से वापस जाता है या नमाज की सलाम फेरता है कि उसके जिम्मे कोई भी गुनाह बाकी। नमाज वो अमल है, लेकिन हमारी क्या नमाजें। कुरान करीम सूरह माऊन में एक और जगह भी अल्लाह ने जिन नमाजों का जिक्र किया बज़ाहिर लगता है वो हमारी नमाजें हैं, हमारी नमाजें। अल्लाह माफ फरमाए, क्योंकि हमारी कैफियत वही है, मैं हूं या कोई और है। पढ़नी भी तो है तो कैसे पढ़नी है, तो बंदा बोझ नहीं समझता यार। फिर खास तौर पे गर्मियां दे दिन आ जान, सर्दियां दे कदों फिर तो नमाजा तो हट के काम ही कोई नहीं। ये शुक्र करो पंजा नहीं रही है, जो होंगी ना पंजा तो फिर खाने का भी टाइम है कोई नहीं लगता। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। वैल हलाकत है, वैल जहन्नम के एक वादी का नाम है। वैल किन के लिए? अल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए। कि अल्लाह नमाजी भी और उनके लिए हलाकत भी, नमाजी भी और उनके लिए जहन्नम का ऐलान भी। फरमाते आम नमाजियों की बात नहीं हो रही, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, इससे मुराद वो नमाजी जिनको अपनी नमाजों की परवाह कोई नहीं है। गफलत की नमाज है, पढ़ ली ना पढ़ी ना पढ़ी, लापरवाही की नमाज है। किसी ने डंडा उठाया, किसी ने पीछे कोई लग गया तो ठीक है, नहीं तो बैठा रहेंगे, परवाही कोई। और कहते हम अपने आप को नमाजी। बड़ी सख्त वाहिदात है जहां नमाज पढ़ने वालों के लिए, नमाज का एहतमाम करने वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इनामात का ऐलान है, तो ऐसे ही नमाज छोड़ने वाले के लिए अजाबात, मुश्किलात, परेशानियां, बेबरकतियां, लड़ाई झगड़े, चपकलशें, तंगदस्तियां और ये तमाम के तमाम जो नतीजे हैं ये नमाज न पढ़ने के भी हो सकते। हम में से हर एक की फिक्र हो, हर एक अपनी नमाजों की फिक्र करें। और मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखा है कि अगर मैं ये चाहूं कि मेरी नमाज वक्त पर हो, मैं ये चाहूं कि मेरी नमाज पाबंदी की नमाज हो, मैं ये चाहूं कि मैं 5 वक्त का नमाजी बन जाऊं, तो मैं दूसरों को दावत देना शुरू कर दूं। हाँ भाई नमाज पढ़नी है, हाँ भाई नमाज पढ़नी है, हाँ भाई नमाज की तैयारी करो, हाँ भाई नमाज के लिए जाते हैं। अगला पढ़े या ना पढ़े, मेरे ज़िम्मे दावत देना है
अगले नो जबरदस्ती चेक के लिए आना, ये मेरी जिम्मेदारी। इस्लामी हुकूमत हो, फिर अमर बिल मारूफ वाला शोबा कायम हो, फिर उनके हाथ में डंडा और वो चौक का एक चक्कर लगाए, फिर मैं देखता हूँ कैसे नमाजी नहीं बनते और कैसे फिर दुकान नमाज के टाइम नहीं बंद करते। मशहूर है ना सी डंडे दे मुसलमान, डंडा आ गया सारा काम सीधा हो गया। दुआ करो अल्लाह डंडे वाली कोई हुकूमत हमें भी अता फरमाए। आख दे बाबा जी आमीन। हाँ, फिर असि सारे सीधे हो जाओ इंशाअल्लाह। तो वो तो फिर पढ़नी है भाई, वो तो फिर जबरदस्ती वाली बात। मेरे और आपके दिल में नमाज का शौक पैदा हो जाए कि मैं अपने रब से मुलाकात के लिए जा रहा हूं, मैं अपने रब से मुनाजात के लिए जा रहा हूं, मैं अपने रब से बातें करने जा रहा हूं, मैं अपने रब के दर की हाजिरी देने जा रहा हूं। बाकी दरबारों पे मैं बड़ा जानता, फलाने दरबार पे आज जाना है और से गड्डी है, अब ऐलान हो गया जी, चलो जी सारे चलते। बाकी दरबारों पे जाना बड़ा सौख और बड़ा सुकून है और बड़ा मजा है, क्योंकि उतने खर्चा भी होता, इतने खर्चा भी कोई नहीं। और हकीकी जो दरबार है, जो रब का दरबार है, वहां पर आने के लिए मैं तैयार नहीं। तो कम से कम हम जितने रमजान के नमाजी है, 5 टाइम के नमाजी है रमजान के, ये तो कम से कम हम बाकी दिनों के भी नमाजी बाकी रहे। क्या ख्याल है, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? खुशनसीब है, मैं कल ही सोच रहा था, खुशनसीब है वो इंसान जिसके रमजान में एक भी जुमात की नमाज कज़ा नहीं, जिसके रमजान में एक भी तरावी की रकत कज़ा नहीं है, एक भी तरावी का सजदा कज़ा नहीं है। अल्लाह कितना एक इनामात अपने बंदों के लिए तैयार कर रखा है। माला आइनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, ऐसे ऐसे इनामात है जिन इनामात को आज तक आंखों ने देखा नहीं है, कानों ने उसके बारे में सुना नहीं है, और दिल में किसी का उस बारे में ख्याल तक नहीं आया। चंदन की जिंदगी है भाई। वो कहा जाता है ना, नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। साड़ी भी पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी? अल्लाह नसीब करे, क्योंकि जनाजे के नसीब हो जाना, कफन दफन का नसीब हो जाना, मुसलमान के हाथ से दफन हो जाना, कब्र का पता चल जाना, जमीन का कबूल कर लेना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सादत है। वो असी नहीं भी चाहेंगे, साइये ने उठा के फिर भी पड़ा चटनी है। तो जो हमारे इख्तियार में नमाज है, हम उसकी फिक्र करें, उसकी कोशिश करें, उसके लिए तैयारी हर वक्त तैयार रहे। इसलिए जो एतकाफ वाले भाई है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि हकीकत में यही लोग जो है वो नमाज के इंतजार करने वाले होते। फजर पढ़ ली, इतने ही बैठे रहना, जोर का इंतजार हो रहे। अगर नहीं नियत पहले की तो अभी से बंदा नियत कर ले। सुबह पढ़ी, उसके बाद आराम किया, उठे, ये जोर का इंतजार कर रहे, क्योंकि हुजूर फरमाना, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इंतजारुस सलाति फी हुक्मिस सलाह, जब तक बंदा सफ में खड़ा बैठकर, मस्जिद में बैठकर अगली नमाज का इंतजार कर रहा होता है, अल्लाह उस बंदे को नमाज का सवाब अता फरमा रहे होते। फिर जोर पड़ी, असर का इंतजार, असर पड़ी, मगरिब का इंतजार, मगरिब पड़ी, ईशा का इंतजार, ईशा पड़ी, थे सुबह का इंतजार। खुशनसीब लोग हैं। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए हम खुद भी नमाजों की फिक्र करें, अपनी नमाजों की फिक्र करें, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने दोस्तों की नमाजों की फिक्र करें। हमारे अच्छे खासे नमाजी भाई होगा, जब बेनमाजी दोस्तों में बैठ जाएगा तो उदी भी नमाज है। अगर मैं उन जैसा बेनमाजी बनता हूं तो मैं कोशिश करके उनको अपने जैसा नमाजी क्यों ना बना। दोस्ती भी बाकी रहेगी, बैठक भी रहेगी, क्योंकि उठन वास्ते इस वास्ते तैयार नहीं, जब मैं उठ गया तो ये बैठे रहेंगे। भाई तू नमाजी, उन्होंने भी नमाज ताकीद कर, किस तरीके ने उन्होंने भी नमाज आदि बना। फिर जब उठोगे तो सारे उठोगे, मस्जिद आओगे तो इकट्ठे आओगे, मस्जिद से बाहर जाओगे तो। लेकिन अजीब सूरत हाल है कि दो नमाजी एक बेनमाजी की वजह से बेनमाजी हो जाते हैं, लेकिन दो नमाजी एक बेनमाजी को अपने साथ नमाजी नहीं। तो सबसे पहला जो काम है
वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी, नमाज की ताकीद, नमाज की फ़िक्र और नमाज का एहतमाम। वगरना अल्लाह माफ़ फरमाए, इज़ा क़ामू इलस्सलात क़ामू कुसाला। अल्लाह ने मुनाफिकीन की बड़ी निशानी ये बयान फरमाई कि जब वो नमाज के लिए उठते तो उन्होंने दिल नमाज पढ़ंदा कोई नहीं करता, बस उठते टाइम गुजार लिया, बाद में दो टकरे लगा दी, अल्लाह ने कबूल कर ले ठीक है, ना कबूल कितना। फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बी करीम हम सबको माफ़ फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अपने घर का ताल्लुक जो तूने नसीब फरमाए अल्लाह इसको दायम और कायम रख। या अल्लाह अपने सजदे की तौफीक हमसे न वापस न लेना, अल्लाह हमसे राजी रहना, अपनी रजा नसीब फरमा, अपने रजा वाले आमल नसीब फरमा। दोस्तों ने रमज़ान की इबादत नसीब फरमाई है, अल्लाह सारी ज़िंदगी की इबादतें हम सबको नसीब फरमा, सारी ज़िंदगी बंदगी में गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। बच्चों को भी नमाजी बना, बड़ों को भी नमाजी बना, अल्लाह पड़ोस को भी नमाजी बना। हर एक के दिल में अल्लाह नमाज का एहतमाम, नमाज की फ़िक्र पैदा फरमा। नमाज के बारे में हम सारे फ़िक्रमंद हो, हमें अपने नमाज को दुरुस्त करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो सजदे दे रहे हैं अल्लाह उन सजदों को कबूल व मंजूर फरमा। आज रात ताक़रात है, अल्लाह आज की रात हम सबको इबादत की तौफीक नसीब फरमा। रब्बे करीम अगर आज की रात ताक़रात लैलतुल क़द्र है तो लैलतुल क़द्र की सारी बरकतें, सारी फजीलतें हम सबको नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।